has a story, but together we create a movement. Welcome to My Running Story, a podcast where we share tales of motivation, determination, and the very spirit of running. I am Ayushi Dolakia, your host, and in today's episode, we have two remarkable runners who have turned their passion into profession and have become a source of inspiration for many. Please welcome Umang Gajjar and Mr. Kiran Parmar. Incredibly happy to have you here with us Thank today. you so much, Arushi. Thank you. I think I'm going to start with, let's take it from the very start. Okay. What was your first running experience? और आपने क्या feel किया? Oh, I think it is almost 8-9 years back. There was no plan to run, honestly speaking. But I have a friend, so basically used to run, Manan. So he used to run initially, and one fine day he called me that there is an event happening called 100 Days of Running, right? So basically he motivated me to join that. At that time I was looking out for some kind of sport because as you know, corporate life, lot of pressure and all. So हमने सोचा कि एक काम करते हैं एक 100 days of running है जिसमें आपको रोज़ 2 किलोमीटर करना होता है for 100 days. So I think it's a transformation event. So I applied for that and I started running. So on a very first day I thought एक काम करते हैं जाके 2 किलोमीटर ही तो करना है. So बचपन में क्या था ना, हम निकलते थे, दौड़ते थे. So I also attempted that. But in just 150-200 meters I realized कि ये तो नहीं हो पाएगा, right? So that's how I started, and then I finished with walk run, and I finished the 2 kilometer, and I kept doing that. Yeah. Around 10-11 days I ran like that, and then I moved to 3 kilometer, 4 kilometer. Then I got transferred to Ahmedabad. At that time I was staying in Surat, so I got transferred to Ahmedabad and I joined ADR. So I got a lot of motivation with ADR. I'll come to ADR later on that. But then I kept running, then I improved to 5 kilometer, 10 kilometer, a lot of ups and downs, lot of travel. I ran on railway stations, airports, because see 100 days एक काफ़ी लंबा टाइम होता है, राइट? सो उसमें बहुत सारे फैमिली अप डाउन्स आते हैं, बहुत सारी आपका ट्रैवल वगैरह भी आता है. बट करते करते on 100 day I did my first half marathon, 21.1 kilometer. Wow. So that is how I started, and I think it was a habit forming event for me, and then there is no looking back. No, I think it's a perfect example of progress lies in the process. Absolutely, By absolutely. the end of 100 Yeah. days. सर आप एक सर्टिफाइड मैराथनर भी रह चुके हैं, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपकी जर्नी किस तरह से रही है? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर माय कॉलेज. जब मैंने आर्मी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया जी. तो तब से मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ था. तो उस टाइम तो नॉर्मली हम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर और उस टाइम तो क्या इजी हो जाता था. फिर धीरे धीरे मेरा पैशन इसमें बढ़ता गया. फिर मुझे लगा कि इसी को मैं अपना काम बनाता हूँ. देन फिर मैंने फिटनेस का सर्टिफिकेशन किया. जी. देन धीरे धीरे ऐसे रन करते करते 5 से 10, 10 से 15, 15 से फिर अल्ट्रा तक पहुँच गए. क्या बात है, सबका स्टोरी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस करके करके अल्ट्रा is a turtle race. दैट्स द वे थ्रू आउट. सर आप आर्मी एस्पिरेंट्स और पुलिस को भी ट्रेन करते हैं, तो Yes, yes. हमने अभी काफ़ी बार सुना भी है कि जब कोई रेगुलर इंसान, ऑर्डिनरी इंसान जब ट्राई करना चाहता है तो उनका ट्रेनिंग स्केड्यूल अलग होता है, बट जब आप इन प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं तो उनका स्केड्यूल और पैकेज बहुत डिफरेंट रहेगा. Yes, तो yes, yes. वो किस तरह से होता है? अभी आर्मी प्रिपरेशन के लिए मोस्टली अराउंड 21 ईयर अराउंड लोग ही आएंगे. तो उनका रनिंग नॉर्मली बेटर ही होता है. उनको सिर्फ टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट लाना होता है. जैसे आर्मी की एग्ज़ाम के लिए 1600 मीटर होता है, उसको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है. तो नॉर्मली बच्चे 7 मिनट तक तो दौड़ लेते हैं. तो उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए मुझे काम करना पड़ता है. आपने बच्चों की बात की. इन टुडेज़ जनरेशन हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा लालच है, हमें जल्दी चीज़ें चाहिए होती है. सो पेशेंस कहीं ना कहीं लैक हो जाता है. तो है, फिर हो जाता है. आपने आपके क्लाइंट्स में, आपके वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें आपने क्या माइंडसेट देखा है और रनिंग से उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है? अब वही अभी जो नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको तो ऐसा ही माइंड सेट होता है कि 1 महीने में या 10 दिन में मेरा टाइमिंग हो जाए. बट मैं उनको समझाता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि ऐसे नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा. और क्या अभी मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 6 साल से मेरे साथ 6 मंथ से है, 1 ईयर से है.
तो फिर मैं उनके भी एग्जांपल देता हूँ कि देखो ये जब आए थे तो इतना टाइमिंग था, नाउ इनका इतना टाइमिंग है। फिर मैं उनको डेली ऐसे गाइड करता रहता हूँ, फिर वो समझते हैं। बट उनका माइंड सेट तो ऐसे ही होता है कि उनको अर्ली रिजल्ट चाहिए, बट इस प्रोसेस पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस। Umang sir, you are definitely credited to giving such a vibrant running culture and building a community here in the city with Ahmedabad district runners. So why don't you share us कि उसके behind की story कैसे रही है, especially जब now you're the president. How's that trajectory been like? So basically Ahmedabad distance runners जो है ना, it's a community, right? And it is one of the oldest and largest community in Ahmedabad. ADR जो है वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 2010, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स नाउ, बाय 6 प्रोफेशनल्स जो लोग अपनी खुद की हेल्थ के लिए जो है रनिंग उन्होंने स्टार्ट किया था, जो आज हमारे ट्रस्टीज़ भी है। तो उन्होंने करते करते फिर उनको लगा कि आई थिंक लेट अस गेट मोर पीपल टू द रनिंग, राइट। सो बेसिकली ADR हैज़ अ क्लियर गोल कि जहाँ पे हमारे जो भी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनका जो अराउंड सराउंडिंग ग्रुप है, सोसाइटी है, उसमें रनिंग को एज अ फिटनेस एक लोग एडप्ट करें। और हम लोग जो है उन्होंने फिर ADR का ये किया और ADR में लोग जुड़ते गए। आई जॉइंड ADR अराउंड इन 2016, राइट। तो मैंने तो काफ़ी 5-6 साल के बाद ज्वाइन किया था। बट मैंने जब ADR ज्वाइन किया था आई थिंक 125-150 लोग थे रनर्स। तो इस टाइम पे अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा रनर्स नहीं थे, इंडिया में इतने सारे इवेंट्स नहीं थे। पर ADR ने फिर धीरे धीरे थोड़ा लोगों को और जोड़ा रनिंग के अंदर, करते करते नाउ वी आर अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 800-900 रनर्स इन अहमदाबाद। ADR जो है वो 8 अलग अलग जोग्राफी एरियाज़ के अंदर उनके चैप्टर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कैप्टन्स है, वाइस कैप्टन्स है। हम लोग जो है काफ़ी सारे इवेंट्स हमारे मेंबर्स के लिए बनाते हैं। जैसे हमारा एक नाइट अल्ट्रा इवेंट होता है, रवाइन रन होता है, जो हमने ट्रेल रन किया हुआ है, अल्ट्रा रन किया हुआ है। वीमेंस के लिए हमने एक अलग से पूरा एक रनिंग इवेंट क्रिएट किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीमेंस हमारे साथ जुड़े और रनिंग को अडॉप्ट करें। उसके अलावा ADR जो है वो वी बिलीव इन गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। सो हम लोग एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली रनिंग करते हैं, हम लोग जो है वो थोड़ा सोसाइटी में इम्पैक्ट लाने का भी प्रयत्न करते हैं। We go to NGOs on 15 August and 26 January. We raise the donation for the needy people and we donate there. उसके अलावा हम काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, एथलीट्स, जो शायद ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कॉल्ड गोल तिरंगा, जिसके अंदर हम लोग जो है लोगों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। वी हेल्प एथलीट्स। सो ADR इज़ ओवरऑल ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। और हमारा मेन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रनिंग करें, फिटनेस को अडॉप्ट करें और खुश रहे, मज़े करें। या बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है दैट रनिंग इज सीन एज अ वेरी इंडिविजुअल स्पोर्ट। या यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन योर ओन ट्रैक, आपका खुद का गोल होता है। बट ADR हैज़ मेड इट सच अ कम्युनिटी ड्रिवन स्पोर्ट। एंड what would you say has that impacted the city, building a community in general, and the lives and personalities of runners especially? Absolutely. अगर आप देखोगे, so when we say कि it's a very individual kind of game, right? बट अगर आप देखोगे कम्युनिटी होने से क्या होता है ना, आई ऑलवेज कैन वेक अप इन द मॉर्निंग, गो आउट एंड कैन रन, राइट। बट व्हेन आई एम विद द कम्युनिटी आई एम बाउंड टू, बिकॉज सी ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, राइट, एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप अगर टेनिस खेलने जाते हो तो यू कैन प्ले टेनिस फॉर 1 आवर। यहाँ पे अगर 1 आवर का रनिंग है तो उसको बहुत ज़्यादा लोग तो एज अ वार्म अप गिनते हैं, राइट। सो रनिंग में ऐसा है कि आप हाफ मैराथन करोगे तो 2-3 घंटा आप ट्रैक पे रह रहे हो, फुल मैराथन करोगे तो 6 घंटा रह रहे हो, अल्ट्रा कर रहे हो तो 12 घंटा 24 घंटा आप रन कर रहे हो। तो ये कम्युनिटी जब साथ में होती है ना, तो आप बहुत चीज़ें एक दूसरे से सीखते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि कम्युनिटी के होने से यू ऑलवेज गेट दैट मोटिवेशन। आज की तारीख में भी इफ़ आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इफ आई चेक माई व्हाट्सएप ग्रुप, आई फाइंड एटलीस्ट 3 of my group where I will see good morning message, right? So ये जो एक मोटिवेशन है ना, वो that will always be there because of the community. So that makes lot of difference to the individual, and that is how we all grow. Yeah. Absolutely. How would you say, how would you encourage people to be more part of such community driven groups, be it through events or be it through being part of organizations? But if you had to encourage and motivate even young people or people at any age bracket to come and join these groups so that they can also reap these benefits. So basically हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली हमारे जैसे 8 चैप्टर है, मैंने बताया, लाइक इफ़ यू आर फैमिलियर विथ अहमदाबाद,
like Ahmedabad is the Prahlad Nagar area, Yeah. Bhopal, Shaila, drive-in. So we have different chapters. So हमने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि जहाँ पे हर चैप्टर जो है ना, दे आर सपोज टू डू 110K इवेंट इन द ईयर. तो उनको अपना एक 10 किलोमीटर का इवेंट करना है. तो वो अपने एरिया में एक 10 किलोमीटर का इवेंट करते हैं ताकि उस एरिया के अंदर अवेयरनेस आए. और उस 10 किलोमीटर का जो इवेंट है ना, उसके अंदर वी इनवाइट फ्रेंड्स एंड फैमिली टू रन विथ अस, राइट. सो व्हेन वी इनवाइट फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्यू ऑफ देम जॉइन अस एंड या ना. और बाकी तो आई थिंक सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि आप जितना पोस्ट डालोगे ना, आई थिंक पीपल फील वेरी मोटिवेटेड. That's true. लाइक एक टाइम पे जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो व्हेन आई यूज्ड टू सी दी पोस्ट के कोई मतलब, बिकॉज सी रनिंग इफ यू सी इट लुक्स वेरी फैंसी, कोई बंदाना पहन के बैठा है, कोई ग्लास लगा के बैठा है, राइट. सो आपको लगेगा कि नहीं ये तो एक बार तो करना है, लाइक यू गेट द मेडल ऑल्सो, राइट, एंड ऑफ द डे इवेंट. तो आई थिंक वी डू मल्टीपल थिंग्स, राइट. सो दिस Right. 10K इवेंट्स आई थिंक दैट इज हेल्पिंग अस, जहाँ पे लोग जो है आके हमारे साथ जुड़ते हैं एंड दे स्टार्ट रनिंग विद अस. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. Yeah. सबको एक बार फ्लेवर मिल जाता है, एक ट्रायल भी हो जाता है, Absolutely, सब एक दूसरे yeah. से मिल लेते हैं एंड देन यू गेट इनटू द True. मेन एंड द कम्युनिटी बिल्डिंग. सर, आपका फिटनेस बैकग्राउंड काफ़ी डाइवर्स रहा है. आप क्रॉसफिट इंटरनेशनली कर चुके हैं, आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, योगा भी करते हैं. वो कौन सी चीज़ें या क्वालिटीज़ जो आपने ये दोनों ट्रेनिंग से ली है जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में हेल्प करती है? योगा हेल्प लॉस्ट, क्योंकि जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ तो उसके लिए रिकवरी मस्ट होती है. राइट. तो योगा मुझे रिकवरी में बहुत हेल्प करता है. योगा हो गया, मोबिलिटी हो गया, तो मुझे वो नेक्स्ट डे रन के लिए रेडी कर देता है. आप आपके स्टूडेंट्स को रिकवरी के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस एनकरेज करते हैं या फिर ट्रेनिंग यही में क्या सेम सिखाते थिंग. हैं? जैसे 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, 1 दिन मोबिलिटी हो गया, योगा हो गया, देन रन हो गया. तो ऐसे ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड होती है. जैसे अच्छा. आज जैसे कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा किया है तो फिर नेक्स्ट डे थोड़ा इजी रहेगा, उसमें थोड़ा योगा मोबिलिटी वो सब ऐड होगा, तो क्या उससे रिकवरी भी बेटर होगा. देन मस्ट है हाइड्रेशन, लाइक फूड, आपको कौन सी चीज़ें खानी है, प्रोटीन, तो वो सब मैं गाइड करता हूँ, तो वो बहुत हेल्प करता है. Umang sir, you have been associated and been a part of the Adani Ahmedabad Marathon from a very long time. How do you see this event as an influence to not just building a culture but also seeping into the very cause of it when we talk about Run for Our Fighters? See, if you see, like this event was started in 2017. Yeah. I think there are many things which is associated with this event to me personally. This was the event where I did my first full marathon, right? So लोग बोलते हैं ना पहला मैराथन बहुत ही स्पेशल होता है. सो फुल मैराथन अगर मेरा पहला था तो इट इज़ वेरी स्पेशल. बिगेस्ट थिंग इज़ दैट द कॉज, राइट, रन फॉर आवर सोल्जर्स. आई थिंक ये जो कॉज है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है. लाइक व्हेन यू गो टू वेन्यू एक्चुअली, एंड अब जब देखते हो ना वहाँ पे कि आर्मी के वेपन्स लगे हुए हैं, आर्मी वहाँ पे मतलब आर्मी के ऑफिसर्स खड़े हुए हैं. सो व्हेन यू गो एंड सी दैट, आई थिंक यू रियली फील वेरी वेरी प्राउड. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी रन फॉर द कॉज. I'll give you an example, right? Basically we have someone called Amit Bhattacharya ji, Dada. So basically, जैसे as I said, कि you learn from your own community, right? So he taught us one thing, right? कि whenever you run, if you are doing a event for the cause, I think it becomes very easy for you to finish that run, right? So whenever you run, even when I do ultra running, so for ultra you are running 70-80 kilometers, right? So when you get the moment जहाँ पे आप थोड़ा डाउन होते हो, तो you will think about the cause you are running for, right? Yeah. So Adani, I think they are really creating an impact for the soldiers. It is a very very important event. Abhi I think I was sharing just before this podcast with someone, like last year I do pacing with the Adani for many years. So last year I was a pacer, and just 2 days before I got fall and I got the fracture. But still I went on the route and I was serving the water, I was serving the hydration to the runners. So Adani is always very special, Yeah, very being very any special. part still makes you feel Yes, that yes, you are yes, in yes. that community. You nearly have a decade of experience when Yeah. it comes to running. So what has been your motivation every time you tie your shoelaces and go out to run? See, honestly speaking, ek to obviously as I said, my community is my motivation, right? And personally speaking, like I have seen myself transforming. My wife is a runner. She is a very good runner, I must say. My son is a runner, right? Wow. My daughter also runs.
So I feel that, when I started running, they were not running, but then later on they joined me. So the motivation is that when I go and run every day, right? I think अगर आपके फैमिली में एक भी आदमी या आपका वाइफ कोई रन कर रहा है ना, सो पूरा फैमिली में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. So I think that is something which is very, very important. And as I said, like I am surrounded by people who can run 400, 500 kilometers also, right? So I think it is always very live and vibrant, which motivates me to go out and run every day. Yeah. कमिंग टू यू किरण सर, आप एक सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं फ्रॉम समबडी हु हैज़ बीन रनिंग मैराथन्स टू नाउ. अब जब आप कोचिंग पे शिफ्ट हुए तो वो ट्रांजिशन आपके लिए किस तरह से था? पहले तो मैं फिटनेस कोच बना था, देन उसके बाद मैंने मैराथन स्टार्ट किया. अच्छा, तो आपने पहले कोचिंग देना, पहले कोचिंग फिर किया, हाँ. उसके बाद मैंने तो मैराथन. क्या कोचिंग करते करते आपको मोटिवेशन आया कि मुझे भी मोटिवेशन तो जैसे उमंग सर ने बताया कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया, जब ऐसे लॉन्ग रन मैराथन, तो तभी मेरे विलेज से मैं एक अकेला ही था कि मैं ऐसे मैराथन करता था. देन अभी 100 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ गए. क्या बात तो है. ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आपको देख के काफ़ी लोगों में चेंजेस आता है. दैन दूसरा कि जैसे जैसे हमारे गोल होते हैं हम उसको कंप्लीट करते जाते हैं, तो वो हमें और मोटिवेट करता है कि चलो इससे भी थोड़ा और आगे करेंगे. Right. मोस्ट रनिंग एज अ स्पोर्ट में भी काफ़ी सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ शूज़ लेके हम बाहर दौड़ने चले गए. आपका हार्ट रेट, आपका Yes. फूड, आपका ट्रेनिंग, प्री सीजन, पोस्ट वर्कआउट मील, आपका बहुत सारी बहुत चीज़ें सारी. मैटर करती है. तो आप इसमें फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल वेलबींग को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे? यस, रनिंग इज़ अ टोटली मेंटल हेल्थ. क्योंकि जब तक आप माइंड से स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप इतना लंबा दौड़ ही नहीं पाओगे. तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहले आपको सोचना है, फिर तब जाके आपका स्टार्ट होगा. आप कैसे, आपका माइंड आस्क गो लिटिल बिट पर्सनल एंड बी लाइक, इफ़ यू हैड टू शेयर वन ऑफ योर best memories of any of the ultra marathons or marathons that you have completed, why don't you share that So experience? I can share 2-3 things. एक तो ये है कि लाइक मैं एक ऐसा रनर हूँ जिसने फुल मैराथन करने से पहले अल्ट्रा मैराथन किया था. हाँ. राइट. सो जैसे यहाँ पे ना सरदार पटेल रिंग रोड अहमदाबाद में, विच इज़ 77 किलोमीटर. सो लाइक पहला 1 या 2 हाफ मैराथन हुए होंगे, एंड वन फाइन डे वी गॉट टू नो दैट देर इज़ अ इवेंट. मतलब हम हमारी जो रनिंग कम्युनिटी है वहीं से एक इवेंट हो रहा था कि सरदार पटेल रिंग रोड पूरा करना है रात को. ठीक है ना. तो 77 किलोमीटर हम लोग निकल गए कि हाँ चलो जाके करते हैं. सो आई डिड अराउंड 63 किलोमीटर. आई कुड डू 63 किलोमीटर. उसके बाद फिर बट आई थिंक दैट इज़ वन मेमोरी बिकॉज एज आई सेड कि वो पहला ही इवेंट था, तो दैट इज़ वेरी स्पेशल. और इसके अलावा आई डिड क्वाइट अ फ्यू रन्स टू रेज द फंड. सो देर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेंस इंडिया विच इज़ बेसिकली दे वर्क ऑन deaf blinds. So even last year also with Adani, I could raise some funds for them. Oh. And even prior to that also, like I did the one event where I could raise fund for them. So I think those are the events which are very special where I could help the society. Yeah. सर ने उनका फेवरेट मैराथन मेमोरी शेयर किया. मुझे आपसे जानना है कि आपके किसी स्टूडेंट का, आपका कोई स्टूडेंट जिसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो या आपने उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी हो, वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो. मेरा एक स्टूडेंट है अभी जस्ट, वो BSF की ट्रेनिंग कर रहा है. तो उसका एग्ज़ाम था, उसके जस्ट 1 मंथ बिफोर उसका हिप फ्रैक्चर हुआ था. ओके. तो उस टाइम तो मुझे लगा ही था कि ये अभी नहीं निकल पाएगा, बट फ्रैक्चर के साथ भी उसने एग्ज़ाम क्लियर किया एंड अभी उसका ट्रेनिंग चल रहा है. इट्स ऑलवेज, आई थिंक स्पोर्ट्स और रनिंग और एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट इन दैट मैटर काफ़ी मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल Always. जर्नी होती है. मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एज अ कोच और आप इतने सारे स्टूडेंट्स को डे एंड नाइट मिलते होंगे, आप उनको रिकवरी पे कितना स्ट्रेस देते हैं? क्योंकि यंग ब्लड, वी आर ऑलवेज इन दैट रट के नहीं कल भी दौड़ना है, कल भी दौड़ना है. कभी हम बॉडी के सिग्नल्स को नहीं पहचान पाते. तो आप रिकवरी पे कितना फोकस देते हैं? मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसे रहता है कि ट्रेनिंग के बाद 50 to 20 मिनट में उनको स्ट्रेचिंग कराता हूँ. देन जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं पोजिस रिकवरी के लिए वो कराता हूँ. देन मैं उनको डेली बताता हूँ, जैसे कि कल आप सुबह रन के लिए आओ तो
ये खा के आना, ये खा के आना, इतना पानी पीना, इलेक्ट्रॉल लेके आना, साथ में आप बॉटल कैरी करके आओ, इसमें आप इलेक्ट्रॉल, एनर्जेल, लेमन वाटर वो सब लेके आओ। तो मैं ऐसे उनको गाइड करता रहता हूँ। Umang sir, if there's one thing that running has taught you or has impacted your life in any way, then what would it be? resilience honestly speaking, like you see, because ये एक ऐसा sport है जहाँ पे ना you need lot of patience and it's injury prone also, right? So many a times you get injured, so थोड़ा break लेना पड़ता है, but that resilience in you, right, it will always help you to bounce back and come back on the field. So I think that it has taught me, and patience, because when you run, long distance running is a game of patience. As we said, like, it's more than physical, it is more a mind game, right? लोग काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या करते हो इतना, अगर 8 घंटे दौड़ रहे हो तो क्या सोचते हो? सो क्या होता है ना, व्हेन यू गेट इनटू द जोन, इट इज़ मोर अ मेडिटेशन, राइट? आपको कुछ किलोमीटर्स के बाद आपका बॉडी दौड़ता रहता है एंड आप एक जोन में होते हो. आई एन्जॉय बीइंग इनटू दैट जोन. सो पेशेंस एंड रेजिलियंस, दीज आर टू थिंग्स like personally, That has impacted you. yes. किरण सर, I'll come back to you again, especially क्योंकि जो फिटनेस एंथुजियास्ट है, बट अभी ये जो नया कल्चर आया ऑफ हाई रॉक्स या फिर योगा या फिर क्रॉसफिट या फिर इवन एज पर्सन आई लव डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोर, या क्रॉस ट्रेनिंग हो गया, बट फिर तभी दिमाग में ये हो जाता है कि बिकॉज आई हैव नॉट रैन दैट मच, या फिर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं उतना दौड़ पाऊंगी या नहीं. बट डू यू थिंक दीज एक्सरसाइजेज ऑल्सो इम्पैक्ट यस इज अ मोस्ट हेल्प. ओके. क्रॉस ट्रेनिंग हेल्प आपको रनिंग में बहुत हेल्प करेगी एंड आपके फिटनेस के लिए हेल्प करेगी, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी. तो वो सब आपको रनिंग में बहुत हेल्प करेगी. ओनली रनिंग से इम्प्रूवमेंट टाइम लगेगा, बट रनिंग के साथ आप योगा करोगे तो वो आपको रिकवरी फास्ट करेंगे. देन आप मोबिलिटी करोगे, एजिलिटी करोगे, तो वो क्या आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी हो गई, आपके जॉइंट्स के जो छोटे छोटे मसल्स है, लिगामेंट है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा. क्रॉस ट्रेनिंग हो गया जो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी. तो क्रॉस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मस्ट फॉर रनिंग. सो कल अगर मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं दौड़ सकती नहीं, अभी एकदम से तो आप नहीं दौड़ नहीं हाँ, आप एकदम से तो नहीं दौड़ सकते हो. आपको जैसे पहले तो आप घर से बाहर निकलो. नहीं, आई विल डेफिनेटली शेयर फ्रॉम ऑल द एपिसोड्स आई हैव डन. जितने मैं 6 लोगों से मिल चुकी हूँ अब, जिन्होंने अच्छा. मुझे खुद ने मोटिवेट किया है भागने के लिए, तो 3.5 किलोमीटर मैं दौड़ सकती हूँ. नहीं होगा. अभी आप पहले Join us for a someday. You are finishing 63 kilometers. No, not like that. Arre, but we have runners, and even on few days, like we also do walk. Not that it is पहले वॉक always. से स्टार्ट करो, देन टाइम टारगेट करो. पहले 30 मिनट, फिर 40 मिनट. थोड़ा एक runners ego रहता है, but then we छोटे-छोटे tell goals. people that walking is not a bad thing. एक क्वेश्चन जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, दैट इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ जिनके में रनिंग इज सच अ इम्पॉर्टेंट एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, मोर लाइक अ डेली एक्टिविटी, कभी भी थोड़ा सा भी जहन होता है अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इश्यूज़. रिसेंटली कितने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, पीपल आर बिकमिंग मच मोर वेरी अबाउट क्या हो सकता है अगर आप ओवर एक्सरसाइज कर ले, ओवर स्ट्रेस दे दे, या फिर उस मोटिवेशन में, या फिर वो जो फीलिंग बहुत आपको अच्छी लगती है दौड़ने के बाद, उसको चेस करने के चक्कर में आपको कभी कभी आप ओवर एक्स्ट्रा एक्सर्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, तो वो कभी आपको जहन आता है Yes. और यू नो वेयर यू ड्रॉ द लाइन. I would like to see इसमें क्या है ना, बेसिकली यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या होता है ना, बिकॉज बहुत सारे लोग कैरिड अवे हो जाते हैं. दूसरा, यू शुड नो योर ओन हेल्थ कंडीशन. आज की तारीख में क्या है ना, जितने भी केसेस आप अगर सुनते हो या देखते हो ना, या तो उनको पहले से कुछ प्रॉब्लम था विच दे वर नॉट अवेयर ऑफ, तो एक रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना. और एज आई सेड, लिसन टू योर बॉडी. बॉडी हमेशा सिग्नल देता है. वेन एवर यू आर रनिंग, इफ समथिंग इज नॉट राइट, बॉडी विल गिव यू सिग्नल. सो यू शुड नो दैट दो सिग्नल्स. आप कई बार क्या होता है ना, लोग फिनिश लाइन पे जाके फेंट हो जाते हैं, मतलब जो हमने देखा हुआ है, राइट. अब फिनिश लाइन क्या है ना, आपको सामने दिख रहा है एंड पीपल पुश देमसेल्व्स सो मच, राइट, विच इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग, राइट. तो ये जो है ना, लिसन टू योर बॉडी. आपका जब ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम दो.
लोग क्या करते हैं, सीधा जाके रनिंग करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया क्रॉस ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रॉपर क्रॉस ट्रेनिंग किया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आपके नी खराब हो जाएंगे, राइट। अब रनिंग में नी खराब होना एक बहुत ही बड़ा मिथ है। अब क्या है ना, बेसिकली अगर आपने सही से नी स्ट्रेंथनिंग किया है, क्रॉस ट्रेनिंग किया है, तो खराब नहीं होंगे। सो क्रॉस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी सिग्नल्स जो देता है वो ज़रूरी है, और प्लस आपको अपना हेल्थ चेकअप अगर रेगुलर करा रहे हो, आपको अगर पता है कि आप सब कुछ ही सही है और आप दौड़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई रिस्क है इसके अंदर। सर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? यस यस सैम, अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से करके या फिर प्रॉपर वे में आप करोगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। देन दूसरी बात की, अभी जो नए रनर आते हैं ना, तो वो अभी जस्ट ज्वाइन करते हैं और वो जैसे उनका फ्रेंड है, अभी वो FM कर रहा है तो बोले मैं भी करूँगा। हाँ। तो ऐसे नहीं होता है। आपको देखना है कि वो तो 5 साल से कर रहा है, मैं तो जस्ट स्टार्ट किया है। तो आपको ऐसे अर्ली रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। आप अगर अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्रॉस ट्रेनिंग करेंगे, मोबिलिटी करेंगे, फूड अपना रिकवरी वाला रखेंगे, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। और प्लस एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, तो यस, एंड यू आस्क अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इन दिस पॉडकास्ट ओनली, कि आपका रिकवरी के बारे में यू आस्क, Yeah. राइट। सो रिकवरी, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका Absolutely. एक 7 घंटे का स्लीप अगर होना चाहिए तो वो होना चाहिए। सो इफ़ यू डोंट फॉलो ऑल दैट, देन ओनली यू मे फॉल इनटू द प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। Yeah. देन क्या अभी कुछ लोगों को क्या जेनेटिकली भी होता है, तो उसकी वजह से फेल डाउन होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि इतना ओवर पुश कर लेते हैं, हाँ। कॉम्पिटिटिव हाँ। बन जाते हैं। ज़्यादातर तो क्या तो आप वही। थोड़ा पेशेंस रखोगे, अपनी बॉडी के कॉल को समझ के फिर आप करोगे, तो ऐसे कोई मेजर इशू नहीं आएगा। और आई थिंक रनिंग एज अ स्पोर्ट इट ऑलवेज स्टार्ट्स एज अ फन थिंग टू डू, हाँ, के actually. करते, बट बाय द टाइम यू रीच अ सर्टेन लेवल वो कंपटीशन Competitiveness आ ही जाता है और इसके वो अंदर, पुश हाँ, करने के so- चक्कर में समटाइम्स यू ओवर एक्सर्ट। True. क्या आपने कभी भी सोचा है दैट इफ नॉट रनिंग व्हाट अदर स्पोर्ट you would have gotten yourself into? See, I have tried cycling, I have tried swimming, right? Because जनरली क्या होता है ना, जो रनर होते हैं ना, दे फील के मुझे कभी ना आयरन मैन भी करना है, हाँ. ट्राइथलॉन भी करना है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनी अदर स्पोर्ट, आई जनरली ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ रनिंग्स, राइट। रनिंग में जैसे आपका रोड रनिंग है, उसके अलावा ट्रेल रनिंग होता है, स्टेडियम रन्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स है, बैकयार्ड अल्ट्रा होता है। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनी अदर स्पोर्ट, वी ट्राई टू सी के और कौन सा फॉर्मेट हम एडप्ट कर सकते हैं, बट नो Venture अदर into different things yes altogether. yes yes And which is your favorite, if from all the ones that you have tried? ट्रेल रनिंग, Trail. आई लव ट्रेल रनिंग। सर आपने अगर कोचिंग, योगा, क्रॉसफिट और रनिंग नहीं तो क्या? काफ़ी बड़ी अभी लिस्ट देखो, हो गई थी वो। मेरा तो क्या है, मैं सब करता हूँ। लाइक मैं क्रॉस फिट भी करता हूँ, जी। योगा भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, देन स्पोर्ट भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो काफ़ी सारी स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ। बट क्रॉस फिट इज़ माई फेवरेट, क्रॉसफिट फेवरेट। बिकॉज दिस इज़ चैलेंजिंग। वो आपको एवरीडे चैलेंज करेगा। Okay, one last word for Adani Ahmedabad Marathon. I think we discussed Adani, as I What are said. you feeling? I mean, we are nearing the 9th edition. So as I what's the said, it is energy one of the like? largest event, right? Largest event. It is like a running carnival. So basically, it is I think around 20, 25, 30,000 people runs at the Sabarmati river front. सबसे बढ़िया ये है ना कि it is happening at a very beautiful route of Sabarmati river front, and people come from all India. So we also get into interact with other runners who are staying in Mumbai, Delhi, Bangalore, right? And it is for the cause. So I think it is a win-win situation for a runner, and we are blessed that we are staying in Ahmedabad. So for us, it is very easy to participate. And I generally do pacing with the Adani. So I think pacing is something which I love to do, and so that's about Adani. You seem excited about Absolutely, for the- absolutely. और आपको इस मैराथन की सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगती है? अदानी मैराथन तो हमारे लिए स्पेशल ही है, क्योंकि ये हमारा होम मैराथन इसको हम बोल सकते हैं। हाँ, और yes. जितने भी यहाँ पे रनर है, तो उनका तो डेब्यू मैराथन भी बोल सकते हैं। जैसे मेरा डेब्यू अदानी से हुआ था। सबका डेब्यू है। देन दूसरी बात की, ये अदानी मैराथन अपने सोल्जरों के लिए होता है, लाइक रन फॉर आवर सोल्जर। Yeah. तो उस दिन का जो फीलिंग्स रहता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, जैसे सुबह उठते हैं तो उस दिन का डे ही कुछ, उसका वाइब भी कुछ अलग होता है। जी। तो सेम थिंग अदानी मैराथन में रहता है। जैसे हम सुबह आते हैं तो हम अपने सैनिकों को देखते हैं, उनके वेपन्स रहते हैं, तो इट्स मोस्ट प्राइड मोमेंट। Yeah. और उनके लिए तो रन बनता ही है।
तो मैं तो बोलूँगा कि अदानी मैराथन इज मस्ट। डेफिनेटली आई थिंक हमारे फाइटर्स को देख के हमारे अंदर की Yes, वो yes, बिल्कुल, स्पिरिट बहुत बाहर आती it है। is, बट it जस्ट is. बिकॉज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनका डेब्यू अदानी मैराथन Yes, हुआ है, तो सब- मुझे लगता है सबका। अगर मुझे वहाँ आना है तो मुझे भी डेब्यू अदानी अहमदाबाद मैराथन से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। 15 अक्टूबर को क्लोज हो वो रहा है। बोल दिया हाँ, हाँ। मैंने, निशित को बोल दिया। ऑलराइट, अब सीरियस स्टफ खत्म हो गया, नाउ विल डू अ वेरी फन सेगमेंट। Okay. जैसे आपके रनिंग में भी लास्ट में एक स्प्रिंट होता है, वैसे विल Yes. डू लाइक अ रैपिड फायर राउंड। Anyone who wants to go first? I can. All right. Yeah, Early morning or late evening runs? obviously early morning. Favorite running track in Ahmedabad? बिलियनर स्ट्रीट, Most difficult running track? जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। आज की तारीख में ऐसी आई है। Traffic. What's your running mantra that you live by? सो बेसिकली हमारा ADR का एक रनिंग मंत्र है, रन लॉन्ग लिव स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज माय मंत्र एज वेल। क्या बात है? Yeah. What is easier, the first kilometer or the last? ऑलवेज फर्स्ट किलोमीटर। What's your favorite post-run meal? See, generally I should say protein, but we all go for chai. So every run starts with the chai tea tapri and finish at the chai ki tapri. I think it's the best route then. Music or no music? Generally no music. One piece of advice you would like to give to a new runner? Just come out and run one step at a time. Your proudest running achievement? As I said, I could raise the fund for the Sense India for the deaf Yeah. blinds. I think that is my proudest moment. And one word that defines your running journey? Resilience. थैंक यू, सर हैज़ डन प्रीटी वेल। आप पे प्रेशर है अब देखते हैं आपकी स्प्रिंट कितनी लंबी जा रही है। और एक ट्रैक जो अभी तक आपने आप उस पर दौड़े नहीं बट आपकी बकेट लिस्ट पे है? लद्दाख मैराथन। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग ऑब्वियसली। अप हिल या डाउन हिल? ब्रीज रन। ओके। फेवरेट रनिंग ट्रैक इन अहमदाबाद? रिवर फ्रंट। व्हाट्स ईजियर, फर्स्ट किलोमीटर या लास्ट? लास्ट किलोमीटर बिकॉज इज माई स्प्रिंट। ओके। आपका फेवरेट पोस्ट रन मील? जलेबी एंड प्रोटीन। जलेबी and गुड protein, बैलेंसिंग yeah. सर हैज गॉट। आप ये अपने स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं? Yes, yes, yes. ठीक है। प्राउडेस्ट रनिंग अचीवमेंट? Delhi run because this is my personal best of full marathon. You shared proudest, आपका फेवरेट? Then राजपथ रोड पे रन हुआ था मेरा दिल्ली मैराथन इज माय proudest moment because I am army aspirant, so it's my dream to राइट, Ah, ऑफ कोर्स। वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू अ न्यू रनर? be patient and stay strong. वन मिथ अबाउट रनिंग यू वुड लाइक टू ब्रेक? मुझे तो कोई मिथ लगता ही नहीं है लाइक बट सब बोलते हैं नी खराब हो जाते हैं देन दैट इज नॉट ट्रू। इज रॉन्ग। ऑलराइट, एंड लास्ट थिंग, इफ यू कुड डिस्क्राइब योर रनिंग जर्नी इन वन वर्ड? स्टे स्ट्रांग एंड फिनिश स्ट्रांग। Yeah, great. ग्रेट इन्फ्लुएंस हैज कुछ है हैपेंड। हैम्पर इसमें। नहीं, वो हैम्पर सब मैं ही लेके जाती हूँ। But thank you so much for sharing your incredible It was stories. pleasure talking to you. I'm Yeah. sure our viewers will understand that running is so much more than just going on the road. But of course, you start with going on the road, moving out of your house, but you take into consideration a lot of factors. And I'm sure everybody will take something back home after listening to this. So thank you so much. It was really incredible. so Great much. insights. And to all our viewers, remember, a journey of 1,000 miles begin with the first step. And if you're looking for inspiration, join us at Adani Ahmedabad Marathon, where we run for passion and purpose. This is Ayushi Dolakia signing off. Until next time, keep running.